ارتقا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو آج کے سیشن میں خوش آمدید۔ میڈیکل ایرر ایک ایسی غلطی ہے جو ان انٹینڈیڈ ہوتی ہے اور بعض دفعہ جو ہے اس کے نتائج بڑے خطرناک سامنے آتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ارتقا نے آج کے سیشن کا انعقاد کیا ہے، میڈیکل ایرر ایتھکس اینڈ سوسائٹی۔ میڈیکل ایرر ہوتا کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے یا عائد کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور پھر نیز اس کے علاوہ یہ کہ اس معاملے میں عام لوگوں کا رویہ، سوسائٹی کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس اہم موضوع کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندا، جو کنسلٹنٹ جنرل فزیشین ہیں بایومیڈیکل ایتھکس، اور ان کا جو کام ہے میڈیکل ایرر کے حوالے سے انہوں نے جو ہے پہلا سیشن جو ہے اچھا ڈاکٹر ندا خود اپنے بارے میں بتائیں، اور ان کے ساتھ اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہیں ڈاکٹر بشرا شیرازی۔ یہ دونوں مل کے اس موضوع پہ کام کر رہی ہیں، اور آج ہمیں اس مسئلے کو، اس موضوع کے اوپر ہمیں سمجھنے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہو سکیں گی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گی۔ پہلی بات یہ کہ یہ کوئی معذرت نامہ قطعی نہیں ہے، یہ بیسیکلی ڈسکشن ہے۔ مہذب معاشروں میں اور ہمارے علاوہ دیگر معاشروں میں میڈیکل ایرر کے بارے میں سوسائٹی میں ڈسکشن کامن ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش سوسائٹی کے لیے ضروری ہے، معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بات کس چیز کے بارے میں کر رہے ہیں۔ جس طرح بجٹ کو سمجھنا ضروری ہے، جس طرح جس طرح بجٹ کو سمجھنا ضروری ہے، جس طرح اکانومی کو سمجھنے کے لیے آج کل بڑی محنت ہو رہی ہے، اسی طرح جو میڈیسن یا طب سے متعلق مسائل ہیں، اگر ان کو سمجھنے کی کوشش کرے معاشرہ تو بہت ساری الجھنیں شاید بہتر ہو جائیں، اور یقیناً ایک چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے ہیلتھ کیئر کے نظام کو، لیکن سمجھ کے کیا جائے گا تو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم واقعی افیکٹو ثابت ہوگا، اور جو کہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ جب اس کے بارے میں بات کریں گے، سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے، اور پھر آپ کو پوچھیں گے یہ کہ آپ کے ذہن میں کیا کیا خیالات آتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد۔ وہ خبر دیں گے سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی 5 میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے 19 سالہ لڑکی جاں بحق ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے رہنما راجہ اظہر کا کہنا ہے کہ لوگ علاج کروانے آتے ہیں، لاش واپس لے جاتے ہیں۔ اہم اپڈیٹ ہے، زمزم سعید سے بات کریں گے۔ جی زمزم۔ پاکستان ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے 19 سالہ لڑکی عصمت جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی۔ عصمت کا تعلق جو ہے ابراہیم نظری سے تھا۔ واقعہ جو ہے سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی میں پیش آیا۔ واقعے کے بعد پی ٹی آئی رہنما حلیمہ عادل شیخ اور رہنما اظہر جو ہے وہ اسپتال پہنچے، ورکر سے ملاقات بھی کی، تفصیلات لی، جس کے بعد جو ہے حلیمہ عادل شیخ وہ مقدمے کے لیے جو ہے عوامی تھانے روانہ ہوئے۔ راجہ اظہر جو ہے وہ لاش کے ہمراہ جن اسپتال میں موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ لوگ جو ہے وہ مرد لے کر آتے ہیں لیکن واپسی میں انہیں لاش لے کر جانی پڑتی ہے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ یہ ایک چھوٹی سی کلپ تھی جو کسی واقعے کے بارے میں تھی جو کسی اسپتال میں ہوا۔ اس کلپ کو سننے کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں کیا کیا باتیں آتی ہیں، چاہے وہ طب سے متعلق ہوں، چاہے اسپتال سے متعلق ہوں، چاہے اس خبر سے متعلق ہوں، جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ میں سننا چاہتی ہوں، جاننا چاہتی ہوں، کیا آتا ہے؟ مائک دے سکتے ہیں؟ جی میڈیکل ایرر کی اس میں کوئی بات بتائی نہیں گئی۔ ہاں جی جی بات یہ ہے کہ ہم اسپتال جاتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ جو ہمیں اٹینڈ کر رہا ہے یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، جی یا جونیئر ہے یا سینئر ہے، بالکل صحیح بات، اس نے کتنا سیکھا ہے کتنا نہیں سیکھا ہے، بالکل صحیح، مریض اس پہ رحم و کرم کا ہوتا ہے۔ اب یہ ایرر جو آپ نے رکھا ہے، جی یہ میں سمجھتا ہوں مسٹیک سے زیادہ۔ اچھا ایک بات ابھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ایرر، مسٹیک،
नेग्लिजेंस, ये सारी टर्मिनोलॉजीज कहाँ लाई करती है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। इस खबर के मुताल्लिक़ जो आपका ओपिनियन है, जो आपका ख्याल है, वो बताइए। वो ये है कि उसको गलत ट्रीट किया गया मरीज, ठीक है, मरीज को गलत तरीके से ट्रीट किया गया, जिससे डेथ हो गई। अच्छा ठीक है, सही। और कोई अगर इस बारे में कुछ कहना चाहे? मैं यहाँ पे समझाऊँ कि जी मेडिकल का तो एक अलग ही मसला है जी और अस्पतालों में जगह जगह ऐसे वाक़ होते हैं जी लेकिन इसमें पॉलिटिकल जो है जी टेस्ट ज़्यादा है जी जो सारी पार्टियाँ हैं जी वो उसको जो हाईलाइट करती जी हैं जो रिजिम है जी हिंद उसके खिलाफ। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि इस खबर को सामने लाने के पीछे और रीजंस भी और बहुत सारे और अवामिल भी हो सकते हैं कि किस खबर को पढ़ा किस तरीके से जा रहा है। जैसे बीमारी में चेक एंड बैलेंस होता है, जैसे बाहर की बीमारी में चेक एंड बैलेंस होता है, सही तरीके से 100% वैसे इम्प्लीमेंट करते हैं मतलब। तो इर्तका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की जानिब से आप तमाम लोगों को आज के सेशन में खुश आमदीद। मेडिकल एरर एक ऐसी गलती है जो अनइंटेंडेड होती है और बाज़ दफ़ा जो है इसके नताइज बड़े ख़तरनाक सामने आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इर्तका ने आज के इस सेशन का इनेकाद किया है मेडिकल एरर एथिक्स एंड सोसाइटी। मेडिकल एरर होता क्या है, इसकी नौयत क्या होती है और फिर इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है या आयद करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और फिर इसके अलावा ये कि इस मामले में आम लोगों का रवैया, सोसाइटी का रवैया क्या होना चाहिए। तो इस अहम मौजू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीदा जो कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन है बायोमेडिकल एथिक्स, और इनका जो काम है मेडिकल एरर के हवाले से इन्होंने जो है पहला सेशन जो है अच्छा डॉक्टर नीदा खुद अपने बारे में बता रहे हैं, और इनके साथ इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर बुशरा शेराजी। ये दोनों मिलके इस मौजू पर काम कर रही हैं और आज हमें इस मसले को, इस मौजू के ऊपर हमें समझने में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हो सकेंगी और उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं खड़े होकर बात कर सकती हूँ, बैठ के बात करना आगे अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा। मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो काफ़ी है, क्योंकि मैं चल फिर के बात करने में ज़्यादा आसानी होती है बनस्बत इस माइक के आगे खड़े रहने। पहली बात ये है कि ये कोई नामा कतई नहीं है, ये बेसिकली डिस्कशन है। महज़ब माशरों में और हमारे अलावा दीगर माशरों में मेडिकल एरर के बारे में सोसाइटी में डिस्कशन कॉमन है। ये समझने की कोशिश सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, माशरे के लिए ज़रूरी है कि हम बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। जिस तरह बजट को समझना ज़रूरी है, जिस तरह अच्छा सर ठीक, सॉरी मैं फिर इसी पे आता। जिस तरह बजट को समझना ज़रूरी है, जिस तरह इकॉनमी को समझने के लिए आजकल बड़ी मेहनत हो रही है, इसी तरह जो मेडिसिन या तिब से मुताल्लिक़ मसाइल हैं, अगर उनको समझने की कोशिश करें मुआशरा, तो बहुत सारी उलझनें शायद बेहतर हो जाएं। और यकीनन एक चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है हेल्थ केयर के निज़ाम को, लेकिन समझ के किया जाएगा तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम वाकई इफेक्टिव साबित होगा। और जो कि दुनिया में हो रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो है जो हम आपको दिखाएंगे और फिर आपको पूछेंगे ये कि आपके जहन में क्या क्या ख्यालात आते हैं इस वीडियो को देखने के बाद।
वो खबर देंगे सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी 5 में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 19 साल लड़की जाँ बहक हो गई। पीटीआई के रहनुमा राजा अजहर का कहना है कि लोग इलाज करवाने आते हैं, लाश वापस ले जाते हैं। अहम अपडेट है, जमजम सईद से बात करेंगे। जी जमजम। ताकि डॉक्टरों की मुबैना गफलत से 19 साल लड़की असमत जो है वो जाँ बहक हो गई। इसमत का ताल्लुक जो है इब्राहिम नजरी से का वाक़या जो है सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में पेश आया। बाकी के बाद पीटीआई रहनुमा हलीमा आदिल शेख और रहनुमा अजहर जो है वो अस्पताल पहुंचे, उनसे से मुलाकात भी की, तफसीलात ली, जिसके बाद जो है हलीमा आदिल शेख वो मुकदमे के लिए जो है अवामी थाने रवाना हुए। राजा अजहर जो है वो लाश के हमरा जिला अस्पताल में मौजूद थे और उनका यही कहना था कि लोग जो है वो मर्द लेकर आते हैं लेकिन वापसी में उन्हें लाश लेकर जानी पड़ती है। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ये एक छोटी सी क्लिप थी जो किसी वाक़ये के बारे में थी जो किसी अस्पताल में हुआ। इस क्लिप को सुनने के बाद आप लोगों के जहन में क्या क्या बातें आती हैं, चाहे वो तिब से मुताल्लिक़ हो, चाहे अस्पताल से मुताल्लिक़ हो, चाहे इस खबर से मुताल्लिक़ हो, जो आपके जहन में आते हैं वो हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्या आता है? माइक दे सकते हैं जी। मेडिकल एरर की इसमें कोई बात बताई नहीं गई। हाँ जी तो आपने जी। बात यह है कि हम अस्पताल जाते हैं, हमें क्या मालूम कि जो हमें अटेंड कर रहा है हाँ ये डॉक्टर है या नहीं है, जी या जूनियर है या सीनियर है, बिल्कुल सही बात, उसने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, बिल्कुल सही। मरीज उस पर रहम करम का होता है। अब ये एरर जो आपने रखा है जी ये मैं समझता हूँ मिस्टेक से ज़्यादा गलती अच्छा, एक बात अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि एरर, मिस्टेक, नेग्लिजेंस, ये सारी टर्मिनोलॉजीज कहाँ लाई जाती है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। इस खबर के मुताबिक जो आपका ओपिनियन है, जो आपका ख्याल है, वो बताइए। वो ये है कि उसको गलत ट्रीट किया गया मरीज, ठीक है, मरीज को गलत तरीके से ट्रीट किया गया जिससे उसकी डेथ हो गई। अच्छा ठीक, सही है। और कोई अगर इस बारे में कुछ कहना चाहे? मैं यहाँ पे समझाऊँ इसके खबर के जी मेडिकल का तो एक अलग एक मसला है जी और अस्पतालों में जगह जगह जैसे वाक़या होते होते हैं, जी लेकिन इसमें पॉलिटिकल जो है जी टेस्ट ज़्यादा है। जी जो सारी पार्टियाँ हैं जी वो उसको जो हाईलाइट करते जी हैं जो मुहिम है जी। हिंद उसके खिलाफ। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि इस खबर को सामने लाने के पीछे और रीजंस भी और बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारे और अवामिल भी हो सकते हैं कि किस खबर को पढ़ा किस तरीके से जा रहा है। जैसे वहाँ के ममालिक में चेक एंड बैलेंस होता है, जैसे बाहर के ममालिक में चेक एंड बैलेंस होता है, अगर सही तरीके से 100% वैसे इम्प्लीमेंट करते हैं मतलब तो हो सकता है कमी आ जाए इस पर। जो आए दिन आप देखती हैं कि मतलब होते हैं कि ड्राइविंग होती है तो उसमें एक कमी आ जाएगी अगर 100% इम्प्लीमेंट कर दिया जाए जैसे बाहर में मार्केट में होता है। तो ये जो मतलब है ज़रूरत इसके लिए इम्प्लीमेंट किया जाए कानून जैसे बाहर के ममालिक में होता है ना, तो मेन चीज़ यही है मेरे को जी। और मैं एक बस पूछना चाहूँगी कि आप लोग अमूमन घर पे होते हैं या कहीं बैठे हुए होते हैं कि टीवी पे इस किस्म की एक न्यूज़ ऐसे नज़र आती है तो वजूहात एक है, मगर आपके अपने जहन में क्या ख्याल आता है जब आप ऐसा खबर देखते हैं? जो अवामिल वगैरह हैं वो बहुत अलग हैं और आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर अपने जहन में बतौर एक शख्स के आपका क्या ख्याल आता है? आई थिंक ये सवाल पूछा जाए। मैं इसी का ही जवाब देना चाह रही हूँ कि ये वीडियो क्लिपिंग जो दिखाई उससे जहन में मेरे ये है कि बहुत से डॉक्टरों का एक ग्रुप है, मतलब बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे होते। मतलब ये कि आप ये समझ लें कि एग्ज़ाम के ऊपर वो हो गया कि वो लोग जो है नफरत करते हैं और उसकी वजह से अमवात हो रही होती हैं। आप वो पे डॉक्टर कहिए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन न्यूज़ जिस तरह आ रही है उससे यही लग रहा है कि डॉक्टर जो है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी। जी बिल्कुल। जब मैं प्रोग्राम के खात्मे के करीब होंगी तो मैं आपको एक अलहदा एक और वीडियो जो कि आप जिसकी बात करें कि रिपोर्टिंग के बुनियादी तरीके उसके बारे में बात करें। जी बताइए। जी गवर्नमेंट कहने में ये ख्याल आता है
ये डॉक्टर ने गलती की। जी बिल्कुल ये जो मरीज मरा है ये डॉक्टर ने गलती की। बिल्कुल। बाद की बात आती है जैसा वो अल्लाह ने मारा, उसका वक्त आ चुका था, ये डॉक्टर कहते हैं, ये डॉक्टर कहते हैं कि साहब ये तो उनका वक्त आ चुका था, अल्लाह ने मारा। हमारे धर्म में ये ख्याल आता है कि डॉक्टर ने मारा। बिल्कुल ठीक बात, दुरुस्त। और कोई पॉइंट किसी और के पास अगर है तो जरूर बोलिए। ठीक, अब अगर हम देखें तो इतनी मुख्तलिफ तरह की टर्म्स हैं जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं, मिस्टेक भी शामिल, एरर, फॉल्ट, वायलेशन, कॉम्प्लिकेशन, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नियर मिस, एडवर्स रिएक्शन, ये सारी टर्म्स मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल होती है। गलती, कोताही, लापरवाही, ये सारी एक सांस में जो किया वो गलत किया था। या तो आपको कोई काम करना था और आपने न किया, और या कोई काम नहीं करना था वो आपने कर दिया बगैर नियत के, बगैर जाने हुए कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। ये एरर कहलाता है। जैसे कि 15 मिली माइक्रोग्राम कोई दवाई लिखी गई हो और सब 15 मिलीग्राम पढ़ लें, क्योंकि लिखाई में लिखने वाले ने एम ऐसे लिखने के बजाय या प्रॉपर मिली लिखने के बजाय निशान बना दिया एम का। अब एम दो माइक्रो का एम थोड़ा लंबा होता है और मिली का एम छोटा होता है, बजाय कि पूरा लिखता उसने ये लिख दिया। ये हाथ की गलती है, इसमें अगला पढ़ने वाला मुकम्मल तौर पर गलती कर सकता है। जब कभी इस गलती के नतीजे में कोई नुकसान हो जाए, चोट लग जाए, मरीज को कोई रिएक्शन हो जाए या मौत हो जाए, तो ये एडवर्स इवेंट कहलाता है, यानी ऐसा काम जो नुकसानदेह काम हो गया। जैसे कि नमूनिया के किसी मरीज को एंटीबायोटिक दी जाए और वो उस एंटीबायोटिक से एलर्जिक था, हिस्ट्री में नहीं पूछा गया कि एलर्जी थी कि नहीं थी, और आपने वो दवा दे दी, उसको रिएक्शन हुआ और वो वेंटिलेटर पे चला गया, सांस की मशीन पे चला गया। ये मुकम्मल गलती है कि एक स्टेप, एक छोटी चीज़, जब कोई हिस्ट्री ले रहा था तो उस वक्त उसने पूछा नहीं और मरीज ने बताया नहीं, या ये बात कभी डिस्कवर ही नहीं हुई थी कि एलर्जी मौजूद है। हालांकि इसका एक निज़ाम मौजूद है, लेकिन ये गलती आम तौर पे होती है। कोई ऐसी गलती नहीं जैसे पाकिस्तान में होती हो या कहीं और ना होती हो। ये गलती है जो हिस्ट्री में एक पॉइंट मिस करने की वजह से हो सकती है। लेकिन दूसरी चीज़ है लापरवाही। लापरवाही का मतलब ये है कि जो एक मुनासिब रवैया है कोई काम करने का, आप वो न करें। जो आपके पास, आप वो काम करें जो एक बाहोश सीहोश आदमी से समझा जाए कि कभी नहीं करेगा। इस काम के लिए इदारों में SOPs होते हैं, यानी हर हेल्थ केयर इदारे में एक प्रोटोकॉल मौजूद होती है, एक तरीक़ाकार लिखा हुआ होता है। अगर मेरे कैनला लगना है तो इससे पहले क्या किया जाएगा, इस जगह को साफ किया जाएगा, ग्लव्स पहने जाएंगे, नया कैनला लगाया जाएगा, उसको इस तरह से लगाया जाएगा कि वो वेन के अंदर है, चेक किया जाएगा, फिर टेप लगाया जाएगा। अगर कोई शख्स ये काम न करे, वो हाथ धोए बगैर, ग्लव्स पहने बगैर, जगह को साफ किए बगैर कैनला लगाए, तो वो जो बुनियादी तरीक़ाकार लिखा हुआ है, जो हर पढ़े लिखे डॉक्टर को, नर्स को पता होना चाहिए, उसके खिलाफ जा रहा है, तो ये लापरवाही कहलाती है। इस लापरवाही में नियत का शुमार नहीं होता। वो होता ये है कि आपने जल्दी में कहा 4 मरीज बैठे, चलो भाई कैनला लगाओ, आपने एक स्टेप मिस कर दिया, आपने दूसरा स्टेप मिस कर, हालांकि आपको पता था ये आप करना चाहिए आपको। ये लापरवाही कहलाती है। जैसे कि पेट में कपड़े का रह जाना, पेट में कपड़े का रह जाने के लिए एक तरीका मौजूद है कि जो आप कपड़ा इस्तेमाल करें उसे काउंट करें, उसे गिने, लिखें कि मैंने इतने कपड़े पेट के अंदर डाले, और जब ऑपरेशन खत्म करने से पहले वो सारे कपड़े निकाले और लिखें कि मैंने सारे जितने निकाले थे वो निकाल लिए, डाले थे वो निकाल लिए। अब अगर कोई किसी जगह पर ये तरीक़ाकार फॉलो नहीं हो रहा तो पेट में कपड़ा ले जाने का इम्कान काफ़ी है, और ये नेग्लिजेंस कहलाती है। एक तरीका तय है ना काम करने का, अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप नेग्लिजेंस कर रहे हैं। जैसा कि निश्वा की मौत में जो तरीक़ाकार तैयार किया गया था, उसमें जो दवा देने का था उसमें स्टेप मिस कर दिया गया था कि दवा को रिकग्नाइज करना है, पढ़ना है, देखना है, डबल चेक करना है, फिर लगानी है। ठीक है, ये नेग्लिजेंस या लापरवाही कहलाती है। एक चीज़ है माल प्रैक्टिस, यानी आप सरासर वो काम कर रहे हो जो आपको करना ही नहीं। आप डेंटिस्ट हैं और आप अपेंडिक्स निकालने चले गए, आप फिजिशियन हैं और बच्चे को फॉरेन बॉडी फंसी हुई है, उसको
कोई छालियाँ फंस गई है, आप उससे नमूनिया का इलाज किए जा रहे हैं, आपको पता है कि छालियाँ फंसी हुई है, इसको निकलवाने के लिए कहीं और भेजना है, लेकिन आप अपने हिसाब से इलाज कर रहे हैं ताकि मेरे पास फीस आती है। ये माल प्रैक्टिस कहलाती है। आमतौर पर दांत साजों के पास होता है कि बजाय कि दांत निकाल लेंगे उसको बार बार उसके अंदर फिलिंग करते रहते हैं। ये मैल प्रैक्टिस है कि आपको पता है कि इसका इलाज ये है ही नहीं और आप अपना काम किए जाएं, तो ये मैल प्रैक्टिस कहलाती है। हम तीन मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में अब तक बात कर चुके हैं, गलती, लापरवाही और सरासर बेज़ाब्तगी के लिए। एक चीज़ है कॉम्प्लिकेशन। वो कॉम्प्लिकेशन का ताल्लुक एरर से भी हो सकता है, नेग्लिजेंस से भी हो सकता है, मैल प्रैक्टिस और इन सब चीज़ों के अलावा भी हो सकता है। एक आदमी जिसका दिल का फेलियर उस लेवल में चला गया कि अब उसका इलाज भी आप करेंगे तो दिल वापस दुरुस्त होने वाला नहीं है, ये उस मर्ज का हिस्सा है। अब इस मर्ज के हिस्से को आप रिवर्स नहीं कर सकते, ये उसकी हार्ट फेलियर की कॉम्प्लिकेशन है कि उसके फेफड़ों में पानी भर जाएगा और वो खुदा न खास्ता वेंटिलेटर पे चला जाएगा। या किसी मरीज के पेट में आंत फट गई, जब तक वो अस्पताल में आया इन्फेक्शन जिस्म के अंदर फैल चुका है, जिसकी वजह से गुर्दा बंद हो जाएगा। इसमें बीमारी इतनी शदीद है कि उसने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर असर डाल दिया। इसे कहते हैं कॉम्प्लिकेशन, जो एरर से भी हो सकती है, नेग्लिजेंस से भी हो सकती है और खुद ब खुद बीमारी की वजह से भी हो सकती है। ये इसकी बुनियादी समझ है, इसको समझे बगैर आप एक चीज़ उठा के ये नहीं कह सकते ये हो गया, ये हो गया, जब तक कि आप उस मसले को समझ न रहे। अब अगर हम आपसे पूछें कि अगर ऐसा हो जाता है, हो गया, आप सब यकीनन मैं भी इस सारे अमल से गुजरी हूँ, मेरे मरीजों में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ प्रॉब्लम, एरर, नेग्लिजेंस सब हुए, मुझसे भी एरर है। हम में से हर वो शख्स जो मेडिकल प्रैक्टिस करता है यानी सेहत आमा में काम करते उसे पता होता है कि मैं कभी ना कभी गलती ज़रूर करूँगा या करूँगी। ये लिखा हुआ है कि जो लोग ये कहते हैं कि मैंने कभी गलती नहीं की, इसका मतलब है वो काम नहीं करते, क्योंकि इंसान होने के तहत आप कभी ना कभी कोई ना कोई गलती ऐसी ज़रूर करते हैं। मैं सर्जन हूँ, मुझे पता है कि मेरी एक गलती ऐसी है जहाँ मेरे मरीज़ की जान भी गई है, लेकिन मेरे मरीज़ को भी के ख़ानदान को भी इल्म था, मुझे भी इल्म था कि हुआ क्या, ठीक है। तो हम में से हर शख्स गलती करता है। अब आप ये सब बताइए कि जब कभी आप लोगों में से यकीनन कुछ ना कुछ ने तो देखा होगा ना ऐसा होता हुआ, आपके साथ हुआ होगा, आपके जानने वालों के साथ हुआ होगा, आपकी अपना फीलिंग क्या है या उस मरीज़ की फीलिंग क्या होती है, उसके ख़ानदान की फीलिंग क्या होती है, आपका क्या ख्याल है, उस डॉक्टर के क्या एहसास होते हैं उस वक्त पे, इसकी मशवरा मुझे आपसे चाहिए। वैसे भी जनरली क्वेश्चन की आपने जो टर्म बनाई है, लेकिन एक कॉमन और लेटेंट जो है जी वो तो उस पर डिफ्रेंशिएट नहीं करता ना, हमारी बहुत सी हैं जी नहीं कहती कि जो आपने टर्म बताई है इससे भी लंबी लाइन वो लिस्ट हो सकती है नहीं टर्मिनोलॉजीज की मतलब दूसरे हर उसमें फील्ड में होती है। अच्छा माइनर से डिफरेंट होता है, लेकिन मैं इससे भी पूछना चाहूँगी कि जो कॉमन आदमी है ये मैंने जो जिसका कोई भी घर का फर्द है जो कि वो ज़िंदगी से जाता है या कोई अपने फिजिकली या मेंटली वो बीमार पड़ जाता है, तो उसके लिए तो सिर्फ वही होता है कि डॉक्टर या हॉस्पिटल जो है वही एक ब्लेम करने की होता है, वो इस तरह इसमें पड़ता ही नहीं है कि ये नेग्लिजेंस था, ये क्या था। बिल्कुल सही बात है, उससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो ये काम कर पाएगा। हम अभी इसकी बात में भी थोड़ा आगे चलेंगे तो हम इसकी बात करेंगे कि प्रोसेस क्या है। किसी आम आदमी से ये आप उम्मीद रख ही नहीं सकते कि वो इन चीज़ों में फ़र्क करेगा। ये अवेयरनेस का सेशन है, इसलिए हम आपको ये सारे फ़र्क बता रहे हैं। किसी भी आम आदमी को आप ये थोड़ी कि आप अवेयरनेस सेशन पहले बिठाएंगे, इलाज से पहले उसे बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। ये सिर्फ समझाने की बात है। मेरा सवाल ये है कि आप जो कोई इस मरहले से गुजरा है वो ये बताए कि उसके अपने तासुरात, उस मरीज़ के तासुरात, ख़ानदान के तासुरात और आपका क्या ख्याल है उस डॉक्टर के तासुरात क्या रहे होंगे उन तक पहुँचा, ताकि हम उससे आगे बढ़ सकें। मैं अपने दोस्त का आपसे वाक़या शेयर करता हूँ। उसके वालिद
की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। क्लिफ्टन का मेरा मशहूर हॉस्पिटल है, AQ से भी वो बताया था महंगा है, AQ से भी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा उसका, आपको शायद पता होगा क्लिफ्टन में। तो वो उनको एडमिट किया, मेरे ख्याल 15-20 दिन एडमिट रहे वो, तो वो फिर बेचारे एक्सपायर हो गए। तो लेकिन वो उसके रीज़न मेरे दोस्त ने ये बताया कि उनकी शुगर ना बिल्कुल डाउन हो गई थी, बिल्कुल डाउन। अब वो उनको डाउन शुगर में इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दिया। मतलब ये मेरे तो समझ में, जैसे हम तो लेमैन है ना, हमको तो समझ आता है कि कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी। क्लियर है कि हम जैसे इंसुलिन लगाएंगे तो ज़ाहिर और मजीद कम हो जाएगी, तो मेडिकल प्रोफेशनल से कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक होगी, वो बेचारे एक्सपायर हो गए इसी बात पर। तो ये समझ नहीं आती बात कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। मतलब कहने का मतलब ये कोई कॉम्प्लिकेटेड भी ऐसा मिस्टेक नहीं की, तो आम आदमी समझता है कि इससे तो शुगर कम होगी, तो उसने कैसे लगा दिया फिर किसी को, ये समझ नहीं आई क्यों लगा, क्या मतलब कैसे हो जाता है ऐसी मिस्टेक मेडिकल प्रोफेशनल से। फिर वो मतलब उन्होंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा करके भाई जो अल्लाह की मर्जी, फिर कोई एक्शन बस ये किया उन्होंने। लेकिन ये समझ नहीं आता कि मेरी कैसे मिस्टेक करती उन्होंने, अगर वो कर सकते तो हमारा तो अल्लाह ही हमने। जो अगला सवाल है अगला, कि आपके ख्याल में जिसके हाथ से गलती हुई होगी उसके क्या तासुरात हैं? जिसके मतलब जो मेडिकल प्रोफेशन आदमी है, जो मेडिकल प्रोफेशनल खड़ा हुआ है, जिसको पता है कि अभी मैंने जो गलत काम किया है इससे किसी की मौत हो गई, जी जी, आपके ख्याल में उसके क्या तासुरात? इसके तो मैडम वही खुद ही बता सकते हैं, हम तो अंदाजन आप वाइल्ड गेस करें। वो तो यही कहता है कि भाई अब मैं से जैसे मुझे टीवी पे आ गया था ना, जो इंग्लिश टॉक आप करेंगे, कह रहा था कि भाई मेरे से गलती होगी, बस ये वो जो हो गया, उसमें और कुछ आपको ध्यान ही नहीं जाके भाई यहाँ पर मेरी उसके अंदर क्या हो गया? अब उसके अंदर जाएगा वो गेम ट्रीट कर रहा है, जो भी है मतलब ये ट्रीट तो कर रहा है, लेकिन अब इस वक्त लेकिन वो आदमी तो वापस नहीं आ सकता ना, वो जो भी कुछ कर रहा है। ये तो आदमी को सोचना चाहिए था जब ट्रीटमेंट दे रहा है उससे पहले उसको लाजमी हम गौर तो करेंगे, ये कोई अनरिटेनेबल होती है ना मिस्टेक, ये तो नहीं कि दोबारा सही हो जाएगी, ये तो सही नहीं हो सकती है ऐसा मेडिकल का, तो उसको भाई कहाँ मतलब केयर करना चाहिए कि भाई क्या कर रहा है, ये मेन चीज़ है। सही है। और कोई इसे कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहेगा? आपको क्या ख्याल है कि मरीज का उसके खानदान की जो क्या ख्याल होते हैं और डॉक्टर के, ये तो भी पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका, और ये हमारे लिए बहुत ही नया है, मेरे लिए। बहरहाल ये कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं कई ऐसे मेरे अजीज अकारीब के ऑपरेशन वगैरह होते हैं और कोई बहुत उनके साथ रहा भी हूँ, लेकिन मेरे जहन में ये बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डॉक्टर जो सही डॉक्टर है वो जो उसूल आपने बताए हैं कि उनके मुताबिक वो काम करता है और कोशिश करता है कि वो गलती ना हो। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई भूल हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो जो है फिर उसको खुद एहसास होता है कि ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, लेकिन ये कि वो डिस्क्लोज नहीं करता उसकी बात, लेकिन वो बात में जब उसका रिएक्शन या कुछ होता है तो उससे भी अंदाजा हो जाता होता है। लेकिन इसमें ये जो अस्पतालों में असल में एक और मसला है, वो ये है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ तबकात हैं जिनको मतलब कि बड़े तबकात के लिए बड़े डॉक्टर, बड़े अस्पताल, छोटे दरमियाना तबके के लिए छोटे अस्पताल, छोटे और उससे नीचे वालों के लिए बहुत होती है। उसमें जो सूरत बनती है वो ये बनती है कि उसमें बहुत सी मिस्टेक हो जाती है, जो नीचे वाले वो जो है हमेशा कुछ न कुछ नीचे लापरवाही कर जाते हैं उसमें, और वो इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते डॉक्टर लोग जो है। लेकिन ये कि जहाँ ऊपर जो पैसे खर्च कर सकते हैं मेडिकल के सिलसिले में, और जो अपने माहाना या सालाना अपने ये एग्जाम कराते हैं पूरी तफसील के साथ, तो वो जो है वो बिल्कुल क्लियर रहते हैं और उनको क्या बल्कि कम होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मैं ये जो हमारे माशरे के जो तबकात हैं, उस तबकात का जो है मसला है सारा, क्योंकि जो अभी आपने वीडियो देखा वो तो यूरोप की चीज़ है, किसी और इलाके की चीज़ जहाँ के ये किस्म के थोड़े कम हैं, लेकिन हमारे छोटे ममालिक जहाँ के हम गुलाम रह चुके हैं और अभी भी तकरीबन आधे तो गुलाम नहीं हैं, तो उसमें जो है हमारी जो ज़्यादा आबादी है 70% आबादी, वो अस्पतालों के अंदर उनकी जो है कोई देखभाल चाहिए।
ये समझना कि जो जिसके हाथ से ये गलती हुई है वो भी किसी प्रोसेस से गुजरता है। जो बात आप कह रहे हैं कि तबकात का मामला है, अब जो डेटा हम दिखा रहे हैं और जिन गलतियों की हम बात कर रहे हैं, इवन नशवा के सिलसिले में जो गलती सरजद हुई थी वो गलती दुनिया भर के सारे अस्पतालों में होती है और अब उसके मुख्तलिफ उसको रोकने के तरीके बढ़ाए जा रहे हैं। एक तरीका उन्होंने ये तय किया कि इसको लेबल किया जाए जब कभी ये दवा देनी है। अब फाइनली उन्होंने जो अभी रिसेंट अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी उसमें बताया कि इन दी एंड उन्होंने कहा कि जिसका बैग ही अलग रखें और आम वार्ड में ना रखें, लेकिन ये रिसेंट है और इंटरनेशनल लेवल की बात कर रही हूँ कि जहाँ पर अभी तक इसका तोड़ नहीं ढूंढा जा सका। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सारी दुनिया में हेल्थ केयर के अंदर या सेहत आमा के अंदर कॉमन है, पाई जाती हैं, उनको समझने का अमल मुसलसल जारी है। जो सबसे बड़ा अमल इस वक्त हमारे मुआशरे में हो रहा है वो नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि जो तबीब और मरीज़ के दरमियान जो ताल्लुक़ है ना वो टूटता जा रहा है। जो एतबार का रिश्ता था वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि हम खबर को मैं आपके ख़िलाफ़ और आप मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मसले को समझकर उसको हल करने की जब कोशिश होती है तो एक मुख्तलिफ होती है, और जहाँ हम एक तबके को अलहदा करके सोचने लगे कि सारा मसला इसी के ख़िलाफ़ हो रहा है तो एक मुख्तलिफ बात होती है। लिहाजा जो बुनियादी मसला है वो ये कि जो ताल्लुक़ था एतबार का वो कमज़ोर हो जाता है इस सारे सिलसिले में। जो डॉक्टर खुद होता है, हम इसको क्योंकि जब हम देखते हैं और हम खुद इस अमल से गुजरते हैं कि जब आपके हाथ से कोई मरीज़ आपके सामने जाता है, आपको शर्मिंदगी होती है, आपके अंदर बेइंतहा तज़ब्ज़ुब होता है कि हुआ क्या है, आपको डर होता है कि ये जो बाहर खड़ा हुआ शख्स है शायद मुझसे नाराज़ होएगा, मुझ पर चीखेगा, चिल्लाएगा, और आपकी बर्डन ज़िंदगी भर मेरा जो मरीज़ आज से 20 साल पहले भी मेरे हाथ से जो ख़राब हुआ था उसका मेरे जहन से आज तक उसका साया हटता नहीं। तो इंसान होने के नाते आपके जहन से वो गलतियाँ जाती नहीं हैं। तो एक बहुत बड़ा ब्लेम गेम आपको सोचते हैं, और हमारे यहाँ जो कॉमन तरीका है अस्पतालों के अंदर, जो गलती करे और अगर वो मान ले कि उसने गलती की तो उसका नाम ले ले, जैसा कि नशवा के केस में हुआ था, गलती शायद पूरे निज़ाम की थी, नाम हम उन लोगों का जानते हैं जो इन दी एंड उसको करने में शामिल हो गए। तो ब्लेमिंग, नेमिंग एंड शेमिंग का जो प्रोसेस सेहत आमा के इदारों में है उसकी वजह से लोग छुपाते हैं अपने गलतियाँ, ठीक है। लिहाजा उनके बारे में बात करना मुआशरे के लेवल पर ज़रूरी है। इससे जाहिर है कि अगर किसी को ऐसी बीमारी हो गई जिसे वेंटिलेटर पे जाना पड़ गया, खतरा खर्चा बढ़ जाता है, अदालती मसाइल उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जिन मुआशरों में हैं लिटिगेशन के जहाँ पे इनको ले जाया जाता है अदालत में, वहाँ इसका बहुत लंबा प्रोसेस चलता रहता है और डॉक्टर्स अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं, एक्स्ट्रा टेस्ट कंडक्ट करने लगते हैं ताकि किसी सूरत वो इस अदालती मामले का शिकार ना हो। ये सारा चीज़ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ केयर को बढ़ाता है और इस बुनियादी एतबार रिश्ते को कमज़ोर करती है जो डॉक्टरों के दरमियान और मुआशरे के दरमियान पाया जाता है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के बारे में सोचें तो कुछ है जो उसके लिए कुछ चीज़ें अहमियत रखती हैं, उसके प्रोफेशन का, उसके महारत का तकाज़ा है कि वो जब गलती करे तो उसके बारे में बात करे। अगर वो मरीज़ की इंसान के तौर पे उसको इज़्ज़त करता है तो वो गलती करने से गुरेज करता है जितना कर सकता है, और अगर हो जाए तो उसके बारे में बात करना चाहता है। बहुत दफ़ा इदारे में वो निज़ाम मौजूद नहीं होते जो डॉक्टरों को सही काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। वो मरीज़ का एडवोकेट होकर उन चीज़ों के लिए लड़ाई करता है कि मुझे सही ग्लव्स ला कर दो, मुझे सही पायोडीन साफ़ करने की चीज़ें ला कर दो, मुझे हाथ साफ़ करने की सही चीज़ें दो, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए मुझे चीज़ें मुहैया करो। ये पेशेंट एडवोकेसी कहलाती है, जो मरीज़ के लिए जंग कर रहा होता है निज़ाम के साथ। सच बोलने के तकाज़ों के तहत से इस बारे में बात करनी चाहिए। किसी को नुकसान पहुँचाना किसी डॉक्टर का मज़हब नहीं होता। डू नो हार्म बुनियादी बात होती है जिस पर सब डॉक्टर हलफ उठाते हैं, ठीक है। अगर अपनी ज़ात से बुलंद होगी कोई सोच ले तो जाहिर है कोई सारी बात नहीं कर रहा होगा, लेकिन जो आखिर में लिखा हुआ है सेहत आमा के इदारों की जिम्मेदारी इसमें बहुत बड़ी है, और इदारों का मतलब सिर्फ
वो इदारा नहीं जो हमारे सामने है, चाहे वो माँ खान का नाम है, लियाकत नाशर का नाम है, किसी भी बड़े इदारे का नाम है। ये इदारों की बात है कि इदारा, उससे ऊपर उसकी मॉनिटरिंग, उससे ऊपर वो मिनिस्ट्री जो इस सारे प्रोसेस को देख रही है। ये स्ट्रक्चर होता है जो ये लाज़िम कर देता है कि गलतियाँ अगर हों तो उनके बारे में बात की जा रही हो, उनको सही करने के तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जब कोई डॉक्टर गलती कर रहा होता है, हो सकता है उसे इस काम करने का तजुर्बा ही ना हो। पकड़ा एक नर्स थी जिसको जो मिल गई, उस वक्त और कोई नर्सेज नहीं मिल रही थी। आपने कहा कि भाई आज तो नाइदाद की ड्यूटी की नर्स नहीं आई है इस जगह की, आज आईसीयू में तुम ड्यूटी कर लो, क्योंकि है ही नहीं नर्स में क्या करो। तो उसे आईसीयू में काम करने का तजुर्बा नहीं था नर्स को, उसने एक ऐसी गलती कर दी जो आईसीयू में नहीं करनी चाहिए थी। आपस में बात करते हुए लिखने में खराब राइटिंग में लिखा, बात पूरी नहीं बताई, मरीज का नंबर नहीं बताया, मरीज का नाम नहीं बताया। बहुत कॉम्प्लेक्स केयर होती है, इसमें मल्टीपल लेवल्स पे काम होती है। एक लंबी लिस्ट है जो कि इन सारे कामों में कंट्रीब्यूट कर रही होती है। आप में से कोई वहाँ मौजूद नहीं होता तो आप इन सारी चीज़ों को, वेरिएबल्स को देख नहीं रहे होते, लेकिन बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बहुत सारे अवामिल हैं जिसमें शामिल होते हैं जो यहाँ से लेकर वहाँ तक, मरीज के बिस्तर तक पहुँचने में हमें कितने काम करने हैं वो सब में शामिल होते हैं। क्योंकि किसी भी काम का, ऐसे सिर्फ डॉक्टरी के प्रोफेशन का नहीं, कोई भी प्रोफेशनल काम किया जाए तो सारा प्रोसेस SOP शामिल होता है। और इतनी सारी चीज़ें जो कंट्रीब्यूट करती हैं। स्लीप डेप्रिवेशन, यानी डॉक्टर 12 घंटे की नौकरी कर रहा है, 12 घंटे की नौकरी करने के बाद अब उससे आप कहें कि 13वें घंटे में 100% परफॉर्म करो, मुश्किल काम हो जाता है। ये भी सोचने की बात है। हर शख्स गलती कर, सिर्फ डॉक्टर नहीं, नर्स भी कर सकती है, फार्मेसी से बैठा हुआ आदमी भी गलती कर सकता है, लैब वाला भी कर सकता है, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है वो दरवाज़ा बंद करके भी गलती कर सकता है, या गलत लोगों को अंदर, इन्फेक्शन वाले लोगों को अंदर जाने देने से भी गलती कर सकता है। एक्सरे वाला गलत एक्सरे रिपोर्टिंग से भी गलती कर सकता है। लेबॉर्ट्री वाला टेस्ट इधर का सैंपल उधर, उधर का सैंपल इधर करने से भी गलती कर सकता है। तो गलती हर शख्स उस अस्पताल में मौजूद कर सकता है। करें क्या? ये डेटा, ये कंक्लूजन हमारे मुल्क का नहीं है, ये अमेरिका का है। 70% जो गलतियों की बुनियाद पर ख़राब काम हो रहे होते हैं वो सारे प्रिवेंटेबल होते हैं। 70%, सिर्फ 30% ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ जो अगला जुमला, या तो कोर्ट उतार के घर चले जाएंगे, भाई हम जो काम करें बहुत खतरनाक है, गलत है। लेकिन अगला जुमला ये है, 90% जो ऐसी अमवात होती हैं वो निज़ाम की नादस्तयाब होने की वजह से होती हैं, इंडिविजुअल की, यानी जो उस वक्त खड़ा हुआ आदमी उसकी गलती से नहीं होती। जो बात बहुत बड़ी है और समझने की है कि गलती को किसी के किरदार की खराबी न समझा जाए, गलती को उस निज़ाम में कमज़ोरी का हिस्सा समझा जाए। हम जब कोई भी मैं चूँकि मेडिकल एरर को देखती रही हूँ, उसको एनालिसिस करती रही हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी दफ़ा मुझे पता चला ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, मरीज़ को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था। क्यों खाली था? उसका बैकअप सिलेंडर अस्पताल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता था? किसी ने अभी तक काउंट करके उसको लिखा नहीं था, और डिलीवरी सिस्टम कहीं और था। आपने उस पूरी लाइन चेन को देखा और आपने कहा भाई गलती तो यहाँ पे है ना, कि यहाँ पे सिलेंडर्स रखो कि एक खाली हो, दूसरा अवेलेबल हो जाए, ताकि जब नर्स को सिलेंडर देने की ज़रूरत पड़े तो उसे सिलेंडर तो मिल रहा हो। तो आप निज़ाम की खराबी ज़्यादा होती है, लोगों के किरदार में खराबी नहीं होती। आज मैं उस नर्स को अगर नौकरी से निकाल भी दूँ, फारिग भी कर दूँ, कल जो नर्स वहाँ पे आएगी वो एग्जैक्टली वही गलती करेगी, क्योंकि निज़ाम में कुछ तब्दील नहीं। ठीक है, तो इस पर हमें एनालिसिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हम क्योंकि हम ये करते हैं काम रोज़ाना, इसलिए हमें पता है। एक और बात जो बहुत अहम है, जैसे ये जो स्टेटमेंट है ये हेल्थ केयर यानी सेहत आम्मा के बारे में नहीं है, ये है एविएशन इंडस्ट्री यानी जहाज़ जो उड़ते हैं उनके बारे में भी है, उनके एरर डिटेक्ट करने के बारे में भी है। ये न्यूक्लियर इंडस्ट्री जहाँ पे के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनके बारे में भी है, और जहाँ कहीं वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है उसके बारे में भी है कि आप गलती को ख़त्म नहीं कर सकते। जहाँ कहीं इंसान का और मशीन का इंटरेक्शन है वहाँ गलती
ज़ीरो नहीं हो सकती। ये साइंस है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये एरर की फ्री साइंस मौजूद है। मैं आपको अभी आज में एक वीडियो दिखाएंगे जहाँ एरर की साइंस के बारे में बात हो रही है। तो एरर की पूरी साइंस है जिसका एविएशन से भी ताल्लुक है, जिसका न्यूक्लियर इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है, जिसका पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जिसका सेहत आमा से भी उतना ही बड़ा ताल्लुक है। फर्क सिर्फ ये है कि सेहत आमा में इसको रिकग्नाइज करने में 1991 में पहली दफ़ा इस पर काम शुरू किया गया। उससे पहले इस पर उस लेवल पे काम नहीं हो रहा था। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन अमेरिका ने पहली दफ़ा इस पर काम शुरू किया था। एक बड़ी सी किताब निकाली थी, इसका नाम था टू अर्न इज ह्यूमन, जो कि एक रिपोर्ट थी मेडिकल एरर के बारे में अमेरिका में। तो ये एक साइंस है जिसको समझे बगैर अगर हम शोर से बचाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं करेंगे सिवाय एक दूसरे पे लान तान करेंगे। उसने एक ये रिकमेंडेशन दे दी कि भाई आपको पूरी मुल्क को ये सोचना पड़ेगा कि मरीज की हिफाजत कैसे की जाए। अगर गलती हो जाए तो उसे ज़रूर लिखें। लिखा उस वक्त जाएगा जब गलती लिखने वाले को पता है कि मैं कल नौकरी से इस वजह से नहीं निकाला जाऊंगा, बल्कि मुझे समझाया जाएगा कि क्या सही तरीका है। ये कहा कि आप हर इदारे को देखें कि उसका स्टैंडर्ड वो हो कि जिसमें गलती की गुंजाइश कम से कम हो, अपने प्रैक्टिसेस को ऊपर ले जाएं और ओवरऑल सेफ्टी सिस्टम में पढ़ते रहे इसको। अच्छा अब ये हो रहा है, ये कॉमन हो गया, इसके लिए क्या किया जाए, अगला तरीका कौन सा होगा। जैसे कि मैं पोटेशियम क्लोराइड की मिसाल दे रही हूँ, KCl जो कि इंजेक्ट हुआ था निशवा में, उसके बारे में इंटरनेशनली स्टडी हो रही है और अब ये आया कि हाँ इसको अब बैग में स्पेशली पैक किया जाएगा और ये बैग यहाँ होगा ही नहीं जहाँ पे काम दवाएँ होती हैं। तो ये एक पूरा एक तरीक़ाकार है जो कि दुनिया में अपनाया जाता है। अस्पतालों के पास निज़ाम मौजूद हैं, लेकिन हमारे मुल्क में चंद अस्पताल हैं जिनके पास ये निज़ाम है। किसी के पास एक निज़ाम होता है, किसी के पास दूसरा होता है, किसी के पास सारे होते हैं, किसी के पास कोई भी नहीं होता। ये देखने की ज़रूरत है क्या अस्पतालों में वो निज़ाम मौजूद है कि जो इन चीज़ों को देख रहे हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर अस्पतालों में किसी फॉर्म में रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, एरर रिपोर्टिंग, एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग, इस तरह के निज़ाम मौजूद ज़्यादातर अस्पतालों में ये निज़ाम मौजूद होता है। लेकिन एक चीज़ थी चेक लिस्ट, आपने देख लिया कि ये SOP ये तरीक़ाकार है, इसकी एक चेक लिस्ट बना। अगर मरीज़ को अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में जाना है तो क्या क्या चीज़ें मुझे चेक करनी है वो लिखा हुआ हो। ये काम पाकिस्तान के अस्पतालों में बहुत थोड़े से अस्पतालों में होता है। जो कोई डेटा है अगर मैं हाथ से लिखूंगी तो मेरी राइटिंग एक आदमी पढ़ पाएगा, एक नहीं पढ़ पाएगा। तो इस सब को कंप्यूटर पे होना चाहिए, टाइप होना चाहिए, निकलते हैं। जो रिसोर्स की ज़रूरत है इसके लिए वो कभी होती है और कभी नहीं होती है। डिपार्टमेंट वाले बैठ के देखें कि हमने एक महीने में कैसा काम किया था, कितनी गलतियाँ की थी, कैसा रहा और हमें आगे क्या करने की ज़रूरत है। ये भी कुछ अस्पतालों में बाकायदा पाबंदी से होता है, कुछ अस्पतालों में बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, जब खुदा ना खासा कोई नुकसान हो जाए तो उस पर बैठ के डिस्कस करना, ये भी कुछ अस्पतालों में होता है, कुछ में नहीं होता। मोबिलिटी मोर्टैलिटी मीटिंग कहलाती है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मुख्तलिफ तरीके से एग्रीडेट होते हैं, JCIA और अस्पताल मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे ISO का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इस तरह के हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे तरीके हैं कि जिससे एग्रीडेट किया जाता है, यानी उनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो काम उस हिसाब से करें जो स्टैंडर्ड। एक चीज़ है डिस्क्लोजर पॉलिसी, यानी अगर मैं गलती करूँ तो इसके बारे में बात करूँ। ये जो है ये ज़्यादातर अस्पतालों में नहीं हो रहा, सिवाय चंद अस्पतालों के जो इस मुल्क में काम कर रहे हैं। हम खुद ये कहते हैं और हम ये पढ़ाते हैं अपने उन सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जो जिनको हम वर्कशॉप दे रहे होते हैं कि गलती ना तो आपका लापरवाही है ना गैर अखलाक़ी है, लेकिन अगर आप उसके बारे में बात नहीं करते तो ये तीनों बातें हैं, आप गलत हैं, आप लापरवाह हैं और आप गैर अखलाक़ी काम करते हैं। ये वो टीचिंग है जो हमारे डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए, लेकिन वो उस वक्त होगा जब उन्हें वो एनवायरनमेंट मिलेगा जिसके बाद बात करने के बाद वो जिंदा कर जाएंगे। किसको बताना चाहिए? इदारे को और आपस में दोस्तों को तो बहुत बताते हैं, मरीज़ को बताना चाहिए कि नहीं। इस बारे में अगर मैं आप लोगों को सवाल करूं तो आपका क्या जवाब? जवाब चाहिए मरीज़ को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? किस चीज़ का? गलती का बिल्कुल बताना चाहिए मरीज को, और मरीज का ये हक है कि वो डॉक्टर उसको जो मरीज पूछे डॉक्टर बिल्कुल सही बात। मैंने अखबार में पढ़ा था, पहले तो इसमें लिखा था कि नदी के 5 साल से माइक
आगे बढ़ा उसमें ये लिखा था जो 5 साल की जो एजुकेशन होती है मेडिकल की, उसमें इथिक्स का कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया जाता डॉक्टर को। तो इसके प्रकार से लिखा हुआ था कि कैसे वो मतलब जिम्मेदारी लेगा, ये फलाना देगा जो भी आप कह रही हैं। तो मतलब ये लेकिन उसमें ये तजवीज़ थी कि अब लास्टली इसको एथिक्स का कोई सब्जेक्ट शामिल किया जाए, ताकि मतलब और ममालिक में भी कह रहे हैं कि ये होता है एथिक्स का ना, क्योंकि पाकिस्तान में एथिक्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता 5 सालों में ना। तो ये इसमें तजवीज़ के इसको शामिल किया जाए 5 साल के कोर्स में, ताकि ये जिम्मेदारी डॉक्टर्स में भी पैदा हो इस तरह से। हमारे मुआशरे का कि जो सच बोलने वाला होता है उसके साथ आमतौर पे क्या सलूक किया जाता है? सच बोलने वाले के साथ आमतौर पे क्या सलूक किया जाता है हमारे मुआशरे में? आप सोचिए कि 50 आदमी सामने खड़े हैं, वो डॉक्टर बाहर निकला और उसने बता दिया कि जो मरीज फौत हुआ है ये मेरी गलती से फौत हुआ है। अब आप ये बताइए उसके बाद उस डॉक्टर के साथ क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, वेरी राइट। तो देयर इज अ प्रोसेस। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मरीज को क्या बताएंगे? हाँ मरीज को तो होश ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाउ डॉक्टर किस तरह बताएगा मरीज को मैंने आपके साथ ये किया? बिल्कुल सही बात है। ये तो वहाँ जो खड़े हुए उसके रवायतीन है जी, वही समझ सकते हैं कि डॉक्टर ने गलती की या नहीं की, या डॉक्टर उनको बताया कि साहब मुझसे गलती हो गई है लेकिन इसको हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा डॉक्टर नहीं करते। आप जो बात कर रही है एक आइडियल बात कर रही है, नहीं आइडियल डॉक्टर की बात कर रही है। और पेशेंट जो है वो इंतहाई तकलीफ में होता है जब वो अस्पताल में होता है। ठीक है, क्यों आप यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब एक्सपीरियंस लोग हैं। जी एक हाँ। छोटी सी मिसाल आपको दूँ, आपने उसमें कहा कि जब वो कैनोला लगाती हैं तो एक सिस्टर आती है, वो कैनोला नहीं लगता, वो ब्लड निकल रहा है जी, वो फिर कोशिश करती है, फिर कर अरे भाई आपको नहीं आ रहा तो आप किसी और को बुला दें, वो नाराज हो गए। फिर वो जाती है किसी और को बुला कर लेकर आती है, फिर वो जब आदमी आता है वो कैनोला लगा तो वो चले जाता है। अच्छा अब हम यहाँ पे थोड़ा पॉज करके डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे, फिर मैं आपको इस बात पर बारे में बात करें। जी माइक दे देंगे। मेरी आवाज़ वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डॉक्टर बोलता नहीं है आप 1 मिनट के लिए अगर अपने आप को उस सूरत में डालें और मैं यहाँ बाहर आके खड़े होकर बोलूँ कि जी मुझसे इस वक्त ये गलती हुई है, ठीक है? आप मॉब मेंटालिटी समझते हैं? मॉब मेंटालिटी समझते हैं? वो कहते हैं ना शय से शय का वफादार ज़्यादा बनावा पड़ता है उस टाइम, राइट? जो बेचारा उस मरीज का भाई बहन बेटा बेटी माँ whoever, ठीक है, वो तो आधे झटके में ही होता है। उसको तो इस वक्त जो प्रॉब्लम पेश आई है उसको वो समझना भी एक मुश्किल होता है। प्रॉब्लम जो हो रही है इस टाइम, एक लोग जब खड़े हो जाते हैं, जब इंसान बताना भी चाहे तो वो ये सोच रहा है कि मैं किस तरह बताऊं, क्योंकि मैंने मुंह खोला और मुझे ये नहीं पता कि मैं घर पहुंचूंगा या नहीं, राइट? तो आप लोगों से बात करने की वजह ये बनती है कि ठीक है होगा 1% डॉक्टर या 5% डॉक्टर जो ना करना चाहे, मगर मेजॉरिटी करना चाहती है, मगर उनमें एक खौफ बैठ गया है। क्योंकि इसी माशरे में आप देखते हैं कि लोगों ने जिंदा लोगों को जला लिया है, इसी माशरे में हुआ है ना। तो हम आपसे, क्योंकि माशरा आप हैं, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जब एक ऐसी चीज़ होती है आपके ख्याल से कौन सा टाइम बेहतर टाइम है, किसको बताना चाहिए? क्योंकि बताना चाहिए बिल्कुल सही, आपका हक बनता है। हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप सब ये चीज़ें गुजार चुके हैं, खुद नहीं गुजारा तो किसी पड़ोसी के साथ गुजारा है। तो मकसद सारा इसका ये कि आपसे पूछें कि आपके लिहाज से मुनासिब वक्त मौका कौन होना चाहिए जिसको ये बात समझाई जाए। जी अच्छा डॉक्टर सर, नहीं मैं बिल्कुल आपकी बात से काम करता हूँ कि ज़्यादा से आपके सभी कोर्सेज को होना चाहिए कि उसी वक्त की जैसे ऑपरेशन खत्म हुआ आपने थिएटर से निकल के बाहर बोल के ऐलान करके भाई बंदा बढ़ गया नहीं करके कैसे वो नहीं होता। एक ये होगा कि एक कोर्सेज
गलती हुई है, गलतियाँ हुई हैं, कौन सी हुई है, किस से हुई है, किस तरह से हुई है। बात यही है कि लोगों को किसी गलती की वजह से हुई है या ये इनएविटेबल उससे भी अपनी रेसिपी केसेस होंगे। तो आपको जो तसल्ली दिलानी है वो ये दिलानी कि हमारे पास एक प्रोसेस है, एक ड्यू प्रोसेस है जो इन केसेस में फॉलो होता है और हम वो फॉलो करेंगे और इतने वक्त का टाइम हमें चाहिए, 5 दिन, हफ्ता वो जो भी आप कह सकते हो। उसके बाद फिर हम आपको एक रिपोर्ट जो शायद कि आपको पेश करेंगे, आपको समझा देंगे, एक कंसल्टेशन सेशन कर देंगे कि जो हमारे जो प्रोसीजर्स के पूरी का फॉलो होगा नहीं होगा, उनमें से नहीं फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो बिल्कुल आर्टों की बात कह रहे हैं ना कि ये दुनिया में भी एग्जिस्ट करती है और इस अस्पताल इस मुल्क में भी एग्जिस्ट करती है। मैं अपनी मिसाल दूँ, मैं सर्जन हूँ, मैंने गलतियाँ की, मैंने मरीज़ को बैठ के बताया और उनको बताया कि हाँ इस तरह से हुआ, लेकिन उसका तरीका था। मॉब में खड़े होकर नहीं बताया, उनको अलहदा ले जा के बैठा के कहा कि देखिए एक बात है जो आपसे करनी है, ड्रॉ करके तस्वीर बना के समझाया। ऐसा भी हुआ है कि जब मैंने देखा कि नहीं मैं इस मरीज़ को डायरेक्टली नहीं बता सकती, इंतज़ामिया को साथ लिया, उनके साथ बैठ के बताया। उसके बाद मुझे बाकायदा थ्रेटनिंग SMS बजाए कि आप ये डॉक्टर अगर नज़र आई तो छोड़ेंगे नहीं। वो भी हुआ, हमने कहा कि 2 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, वो भी किया और उसके बाद वापस काम पे भी गए। प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। जो ज़रूरत है कि अवेयरनेस जो चाहिए सोसाइटी वो डिमांड करे, मुआशरा ये मांगे अस्पताल से और लोगों से कि भाई जो हो गया आप उसकी तहकीक करके हमें जवाब दीजिए कि हुआ क्या। जैसे आप कह रहे हैं कि शुगर कम हो गई और फिर शुगर कम होने के बावजूद इंसुलिन लगा दी गई, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये वाहिद इवेंट नहीं है, ऐसे इवेंट दुनिया भर में शुगर कम होने से मौत के वाक़यात दुनिया भर में होते हैं जिस पर इंसुलिन लगा दी जाती है। इसलिए कि उसकी प्रोटोकॉल है कि एवरी टाइम आप इंसुलिन लगाने जा रहे हैं आप शुगर देखेंगे, उससे पहले आप शुगर देख रहे होते हैं। इसको कोई तरीका प्रोटोकॉल सेट होता है, या तो उस मरीज़ डिपेंडिंग इस मरीज़ की शुगर का बिहेवियर कैसा है, आपको पता होता है मुझे ये चीज़ चेक करनी है, उसके बाद में इंसुलिन लगाऊंगा। अगर वो स्टेप उस आदमी ने मिस कर दिया, अब हम में से कोई शख्स ये कर नहीं सकता तो उसको रिवर्स कर सकता। जहाज, आपने जंबो जेट के क्रैश होने का सुना होगा। जंबो जेट जब क्रैश होते हैं तो उसकी पूरी एनालिसिस होती है और ये फैसला किया जाता है ये गलती से हुआ, खराबी से हुआ, किस वजह से। उसमें तो 200, 300, 400 जाने एक साथ चली जाती है। जो हमें समझने की ज़रूरत है, नंबर 1 कि इंसान जहाँ मौजूद है वहाँ गलती की गुंजाइश मौजूद है। नंबर 2 ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है कि जब कभी गलती हो जाए उसके बारे में बात की जा रही हो, बैठ के डिस्कस किया जा रहा हो। नंबर 3 इन इदारों में वो निज़ाम मौजूद हो जो गलती से सीखने के अमल को इंश्योर कर रहे हों। मुआशरा ये डिमांड करेगा कि हमें ये चाहिए, तो अस्पताल इदारे, मॉनिटरिंग करने वाले इदारे मजबूर होंगे कि वो इस सबको प्रोवाइड कर रहे होंगे। अगर मुआशरा सिर्फ एक केस पे लाश रख कर रो कर चला जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये है बुनियादी मकसद इस तरह के सेशंस का कि मुआशरा जाने की उसे ज़रूरत किस बात की है। जो आपने सेकंड रिपोर्ट देखी जिसमें कि जो UK से थी, जहाँ पर एक डॉक्टर वापस गया, पाकिस्तानी डॉक्टर है, उसने गलती की, उसकी गलतियों का एक लंबा सिलसिला है, मैल प्रैक्टिस में आता है। वो वापस गया हुआ है अदालत में बयान देने के लिए। वो उसका मीडिया पूरा उस प्रोसेस को दिखा रहा है कि किस तरीके से इसको चेक किया जा रहा है, ताकि मुआशरे के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि अगर कोई गलती करता है तो ये प्रोसेस है जिसके तहत इसे देखा जाता है। जो मीडिया को ज़रूरत है, जो मुआशरे को ज़रूरत है, वो डिमांड की ज़रूरत है कि भाई उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करो। जो नशवा के फादर का आखिरी सेटलमेंट के बाद जो बयान था, जो उसने डिमांड किया, उसमें एक अच्छी बात ये थी कि उस प्रोसेस के बारे में बात कर रहा था कि जो ज़रूरी है इन इदारों में होना, डॉक्टर्स के अंदर होना और मॉनिटरिंग बॉडीज़ के पास होना। कॉम्पनसेशन के बारे में बात करते हैं कि जब आम तौर पर कॉम्पनसेशन का मतलब ये दिया जाता है कि पैसा दे दिया जाए या ले लिया जाए या कोई सेटलमेंट हो जाए। ब्रिटिश पाकिस्तान सिलसिले में भी शायद किसी हद तक कोई हो गया, मैं पता नहीं। लेकिन ये बात पक्की है कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि इसको निपटाए किसी न किसी तरीके से। जो सबसे बड़ी चीज़ दुनिया भर में इस डेटा को देखा गया है, जो सबसे बड़ी चीज़ वाकई समझी जाती है
जिसे मुआशरे में तब्दीली लाई, वो डिस्क्लोजर यानी बताना और मुआफ़ी मांगना है। मेरे मरीजों ने कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे। जब कितने मैंने उन्हें बताया कि मैंने गलती की है, मुझे पता है यहाँ गलती होगी, शायद मैं ऐसा करती तो मरीज बच जाता, शायद मैं यूँ करती तो मरीज, उन्होंने मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे। उन्होंने मुझसे बैठ के कहा कि हमें खुशी है कि आपने हमसे बैठ के बात की, शुक्रिया अदा करके वो मरीज मुझसे मेरे पास से गए हैं। तो डिस्क्लोजर एंड अपॉलजी सबसे बड़ी चीज़ समझी जाती है कि जिसने फ़र्क पैदा किया है इस मामले में। वेविंग ऑफ फी कॉमनली किया जाता है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे मुल्क में टॉर्ट सिस्टम है, गलती करो, इतनी बड़ी गलती करोगे तो इतने पैसे, जान जाएगी तो इतने पैसे, ये टॉर्ट सिस्टम कहलाता है। कुछ ममालिक ने कहा कि नहीं, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जब कभी सेहत आमा का प्रोसेस हो रहा होगा वहाँ गलती होगी, लिहाजा हम ये नहीं कहते कि किसी एक शख्स से गलती है, हम इसे निज़ाम की गलती के तौर पे लेंगे और जो कॉम्पनसेशन है वो उस निज़ाम की जिम्मेदारी है। हर दफ़ा जब ऐसा होगा रिपोर्ट करेगा डॉक्टर, डॉक्टर हेल्प करेगा उस मरीज़ के अटेंडेंट को कि रिपोर्ट किया जाए, उसके बारे में बात की जाए और ये फैसला किया जाए कि किस हद तक लोगों ने फंड्स इसके अलग करके रखे हुए हैं जो कॉम्पनसेटरी फंड्स कहलाते हैं। नो फॉल्ट सिस्टम, ये डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और यूके में भी कुछ इदारों में ये नाफिज कर दिया गया, स्टेट अमेरिका भी स्टेट में पहले नाफिज हुआ। तो बात इसकी ज़रूरत इस बात की है कि हम इस पूरे अमल को लान तान इल्ज़ाम तराशी के से आगे लेके चलें। हम ये सवाल उठाएं कि क्या इदारों में वो निज़ाम मौजूद है, क्या ट्रेनिंग के लिए वो लोग मौजूद हैं, क्या हमारे पास उतने लोग मौजूद हैं कि ये सारे काम करें, और जो मॉनिटरिंग बॉडी जिनकी जिम्मेदारी बनती है कोई इन सब प्रोसेस को कंट्रोल करे, क्या वो अपना काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन अभी बना है, उसने अब इस साल में अपना काम शायद प्रॉपरली 2 साल से अपना काम प्रॉपरली शुरू किया है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, वो इदारा आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है अगर आप ये आवाज़ उठाएं कि ठीक है मानते हैं ये हो गया, आप हमें से एनालाइज करके हमें बताएं कि हुआ क्या। और इदारों में निज़ाम मौजूद है, एथिक्स कमेटीज़ होती हैं, इस शहर में भी इदारों में एथिक्स कमेटीज़ होती हैं, इस शहर में भी इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड सपोर्टिंग के तरीके होते हैं। रिपोर्ट करना ज़रूरी है, चाहे डॉक्टर करे, नर्स करे, उसका वहाँ पे मौजूद सफाई करने वाला करे या मरीज़ और मरीज़ का अटेंडेंट करे, बात करना ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा मैसेज है जिसको लेके अगर आप यहाँ से आज उठ के जाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। वीडियो हम कुछ भी चला सकते हैं, अंग्रेजी गाड़ी। As a young physician, it's important to be aware of the many preventable errors that occur. Each year, it's estimated that hundreds of thousands of Americans die because of such errors. This is likened to 2 747 planes crashing each day, every day. Learning from these mistakes and using strategies to prevent, recognize, and mitigate them may save lives. One such case occurred in 2003 as surgeons at Duke Hospital performed a heart-lung transplant on 17-year-old Jessica Santillan. Jessica had restrictive cardiomyopathy and pulmonary hypertension and needed the transplant. But as the surgery was wrapping up, blood type results demonstrating a mismatch came back from the lab. Santillan had received organs from a type A donor, which were quickly rejected by her with type O blood. She went into multi-organ failure, requiring prolonged bypass. Despite a second transplant with appropriately matched organs, she became sicker and sicker and died days later. Another notable case was Libby Zion, admitted to New York Hospital on a cold evening in 1984. She was febrile, confused, and staff described strange, jerking movements. She was admitted for fluids and further observation and testing. An intern resident, not focusing on her history of depression and believing she had a viral syndrome and hysteria, administered Meperidine.
Shortly thereafter, the intern went off to cover her 40 other patients, and the resident took a nap. As Libby became more and more agitated, the intern was notified over the phone and ordered restraints and haloperidol. By morning, her temperature was 107 degrees, and she shortly thereafter arrested. The fatal medical mistake appears to be failing to recognize serotonin toxicity from her antidepressant. More so, it was concerning that no one noted the interaction between her antidepressant and the riperidine that would worsen things. More so, there was concern that restraints and medications had been ordered without a bedside evaluation. And ultimately, it was felt that poorly supervised junior residents should not be taking care of so many patients after 36 hours in the hospital with little to no supervision. This case led to increased oversight of residents and interns and ultimately led to the work hour restrictions we have today. Another case involved Bill, a man with epilepsy who had a seizure and crashed his car into a tree, badly crushing both legs. Arteriography revealed that his right leg was salvageable, but that his left leg was not. Unfortunately, due to a technologist error, the films were mislabeled, with the left leg being labeled as right and the right leg being labeled as left. On direct examination, both legs were so bad that the orthopedic surgeon didn't notice the mistake and amputated Bill's right leg. Preventing wrong-sided surgeries has become one of the main safety goals of JCAHO. Using checklists and double-checking and a systematic protocol helps to reduce such errors. Another such case is Linda, a woman who might be very commonly seen in our emergency department. First trimester pregnant with hyperemesis. The vomiting had left her dehydrated and hypokalemic, and so potassium was ordered and administered. However, a mathematical and dosing error in the use of highly concentrated potassium resulted in Linda arresting within an hour. Since then, patient safety groups have drawn attention to the need for the removal of concentrated potassium from patient care areas, using pre-mixed solutions, keeping potassium separate from other drugs, and using warning labels have helped to reduce such errors. These cases serve as reminders that mistakes may be inevitable, but we have to recognize our biases and shortcomings and use systems-based approaches to prevent, recognize, and mitigate them. और आप फौरी उसको तब्दील कराइए और इसके इससे पैसे होंगे मरीज पर क्या गुजरी जो डॉक्टर ने नहीं सोचा। जब वो मरीज दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका इलाज करता हूँ। वो उसका 4 दिन 6 दिन इलाज करता है और वो मरीज आज तक सही चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात, ये बैड प्रैक्टिस कहलाता है। दुनिया में इसको बैड प्रैक्टिस कहते हैं। हर अस्पताल के अंदर इंडिकेशन यानी किसी ऑपरेशन की ज़रूरत थी या नहीं थी, इसको देखने के लिए निज़ाम मौजूद होने चाहिए। ये प्रोसेस होता है कि अचानक एक नज़र आता है कि एक डॉक्टर है जो कि पता नहीं 50 घुटने 1 साल में तब्दील कर रहा है, एक डॉक्टर है जो 10 घुटने तब्दील कर रहा है, और जो 50 घुटने तब्दील कर रहा है, क्या वो ये प्रैक्टिस जेन्युइन कर रहा है या कोई और प्रॉब्लम है? आमतौर पे मरीज़ इस बारे में कंसर्न रेज करने का काम करते हैं। तो एक बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल मैंने एक दफ़ा पढ़ी थी, बड़ी आंत का मुआयना होता है। एक डॉक्टर था जो बड़ी आंत का मुआयना मुकम्मल नहीं करता था, रास्ते में से पलट के वापस आ जाता था, आधा करके वापस आ जाता था और मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो कहता था कि सही।
तो नर्स ने रिपोर्ट किया उसे कि भाई ये मुकम्मल मुआयना नहीं कर रहा। इदारे के अंदर निज़ाम मौजूद था, वो नर्स ने रिपोर्ट किया। उस रिपोर्ट के बाद उस डॉक्टर को फारिग नहीं किया गया, उसे कहा तुम रीट्रेन हो गए, जाओ ट्रेनिंग दोबारा करो। तुम अब उस सीनियर लेवल पे तुम अब काम नहीं करते, जाओ ट्रेनिंग दोबारा करो, सीख के आओ कि कोलोनोस्कोपी कैसे की जाती, बड़ी आंत का मुआयना कैसे किया जाता है, फिर कर सकते हो। तो हर वो शख्स जो गलती कर रहा है उसे पकड़ने के निज़ाम में तरीके मौजूद होते हैं। अगर किसी शख्स को, जैसे कि मेरे पास मरीज आता है दूसरी जगह से इलाज करा के, और मैं देखती हूँ कि इलाज का सरासर बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ था, तो मैं मरीज़ को कम से कम इतना एजुकेट कर देती हूँ कि शायद ये तरीका नहीं था और इसको एक मुख्तलिफ तरीके से होना चाहिए था। मेरे पास ये सवाल मौजूद है कि क्या मेरे पास कोई ऐसा निज़ाम मौजूद है कि मैं इसे रिपोर्ट कर सकूँ? तो नहीं, ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि मैं अपने नाम के बगैर रिपोर्ट कर सकूँ कि ये सरासर गलत हुआ। तो ये वो चीज़ है जिसके लिए हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। मैल प्रैक्टिस है अगर कोई शख्स बग़ैर इंडिकेशन के, बग़ैर ज़रूरत की सर्जरी करता है, वो सरासर मैल प्रैक्टिस कहलाती है, इसमें कोई दो बातें नहीं। अपेंडिक्स को ऐसे करके दर्द करवा के निकाल देना मैल प्रैक्टिस है, और एक शख्स अगर हर रोज़ में 6 अपेंडिक्स कर रहा है तो देखने की ज़रूरत होती है बात कि वाकई वो 6 अपेंडिक्स रिक्वायर्ड थी कि नहीं थी, और इसके लिए निज़ाम मौजूद होते हैं। और इसमें जब आवाम के पास वो तरीका होगा कि जहाँ वो जाके लिख सकेंगे, देखिए हमारा कंसर्न ये सोचना कि ये तो है ही सरासर गलत, और हम अपने घर में बैठ के कोड़ते रहें, चाहे जितना कोड़ लें, मसला हल नहीं होगा। मसला बात करने से हल होगा, मसला मसले को लिख कर देने से हल होगा। जी देखिए, जिस तरह से आप जो प्रेजेंटेशन दे रही हैं, मैं समझता हूँ जो पॉइंट देना चाह रहा हूँ वो इसके लिए है क्या एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोप्लास्टी हो रही है। डॉक्टर कहता है कि मैं आपको 40,000 का स्टेंट लगाऊँ, 80,000 का लगाऊँ, या 1,20,000 का लगाऊँ। देखिए क्या चीज़ है, सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप और मैं, हम दोनों इस माशरे के, जो पहली मिसाल आपने दी कि एक ने जाके बोला कि घुटना बदलें, दूसरा नहीं बोला। अगर मेरे घर का एसी खराब होता है, एक बंदे को बुलाती हूँ, वो कुछ ठप ठप करके वो एक दिन चलता है, दूसरा आके मुझे कहता है कि ये सही नहीं हो सकता, आप एसी बदल लें। ठीक है, इन दोनों में सही कौन कह रहा है? आपके लिहाज से कौन है? पहली बात, हो सकता है कोई चीज़ इस वक्त इमरजेंसी में करने की ज़रूरत ना हो। एक मिसाल दे रही हूँ, एक इंसान के पित्ते में पथरी है, वो पथरी 20 साल पाल सकता है। ठीक है, अगर उस पथरी ने मसला किया, वो हो सकता है वो मसला कल भी करे। अब जब आप मेरे पास आएंगे, अगर मेरे बहुत बाल सफ़ेद हो गए, मैं अपनी तरफ से बोलूँगी कि अगर मैंने इसको कह दिया कि ऑपरेशन लाजमी नहीं है, तो ये चला जाएगा, गांव चला जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर जिस मसले के साथ आएगा वो बचाना मुश्किल है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बोलूं कल सुबह ऑपरेशन कराओ, वो भी गलत है, क्योंकि आप पे अलग प्रेशर डाल रहे हैं। जब भी हम कोई कहानी कहते हैं या कोई वाकया होता है, उसमें मैल प्रैक्टिस, यानी एक तो है कि नीयत ही गलत है, भाई तो मेरे दुकान में आएगा, मैंने तुझसे पैसे लेने ही हैं, इस पे तो बात करना फजूल है, क्योंकि वो कर ही गलत रहा है। मगर अगर आप देखें कि ये जो डिफरेंट आपको ओपिनियन मिलते, लोग अलग अलग चीज़ें बनते, आपका बतौर अवाम होने के, जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, या तो उसकी बात आपको समझ आती है, अगर आपको उसकी बात में पूरी समझ नहीं आ रही है ना, आपका हक ये बनता है 3 जगहों पे जाएं, तीनों से पता करें और फिर एक फैसला खुद करें। एक शख्स पे अंधाधुंध कभी यकीन ना करें, गलतियों के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि हर आदमी एक पहलू, अगर मैं सोचूं कि
जितनी दवाइयाँ मुझे देनी पड़ेगी एक मर्ज के इलाज में 6 महीने में, अगर उसका ऑपरेशन से, एक मिसाल दे रही हूँ आपको, वो दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े और मैं ऑपरेट कर लूँ, मेरे जहन में वो बेहतर ऑप्शन है लेने का, मगर वो मेरा जहन है। हो सकता है आपका जहन वैसा ना हो, आपको लफ्ज़ ऑपरेशन से इतना वो खौफ हो के बोले नहीं मैं दवाइयों पे गुजारा करने को तैयार हूँ। तो जो ऑप्शन होता है ना, वो आपको बतौर आवाम के हक होता है कि जाके 4 अलग लोगों से पूछ लो। इसमें एक बात आपको ऐड करवा दूं, एक बात कर सकती हूँ। जो अभी आपने कहा कि आप एक डॉक्टर के पास गए, उसको मरीज दूसरे डॉक्टर के पास गया, तीसरे के पास गए, डॉक्टर में इतनी आना है कि अगर मैंने कहा कि मैंने डॉक्टर निजा को दिखाया था, और ये थोड़ी आपकी बात तो सुनिए ना, कि जितनी ये रिपोर्ट डॉक्टर निजा ने मुझे दवाएं वो पेपर को उठा के भेज देते हैं, नाम सुनना पसंद नहीं करते। तो जो बुनियादी बात है ना कि मुझे ये हक है कि मैं किससे इलाज कराऊँ, मुझे यह हक है कि मैं किससे इलाज करूँ। अगर मैं समझती हूँ कि कोई डॉक्टर इस हद तक मिजाजदार है तो मुझे नहीं ज़रूरत उसके पास जाने की, आपका हक है, किसी ने कोई आपको ज़बरदस्ती उसके पास भेज नहीं सकता, कि आपका हक है, इस हक को इस्तेमाल कीजिए। जो स्टेंट्स की आप बात करें, ये मेडिकल साइंस की बात है। एक स्टेंट 20 का होता है, वो उस शख्स के पास जिसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो सबसे बेहतर स्टेंट जो है ना, वो जिसके अंदर दवा लगी हुई है, वो 1,20,000 रुपये ही का है। लेकिन मैं क्या उस आदमी का इलाज नहीं करूं जिसके पास 1,20,000 रुपये नहीं है? मेरे पास वो ऑप्शन जो आज से 10 साल पहले आया था, लेकिन मैं इसको वही दे सकती हूँ। मैं 1,20,000 वाला स्टेंट लगा ही नहीं सकती, क्योंकि ना मैं अपनी जेब से दूंगी, ना अस्पताल अपनी जेब से देगा, ये तो बाजार से ही खरीद के आएगा। मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो यही है। तो मैं आपकी जेब में कितना है वो डॉक्टर को नहीं पता, वो कहेगा यार ये 3 तरह की चीज़ें मैं जब कभी स्टेंट लगाने जाते हैं, तीनों स्टेंट मेरे पास सामने रखे हुए होते हैं, तुम बता दो कि जो तुम्हारी जेब में है, जिस हद तक तुम कर सकते हो बता दो। ये रैशनल होती है। डॉक्टर वो बता रहे हैं जो साइंटिफिकली करेक्ट है। हमें सवाल बस ये करते हैं, डॉक्टर साहब आपने ये बात तो बताइए, इसकी वजह क्या है, क्यों ये 3 तरह के स्टेंट हैं, आप ये समझा दीजिए। और जो समझाने को तैयार नहीं है फिर ज़रा मसला है। जी पहली बात ये मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जो कराची के जो बगैर अस्पताल जैसे आखा वगैरह तो अस्पताल वगैरह, उनमें फिलहाल आई एम जस्ट क्यूरियस कि उनमें जो मेडिकल नेग्लिजेंस या मैलप्रैक्टिस को आइडेंटिफाई करने के क्या प्रोसेस है, उनको एड्रेस करने का क्या प्रोसेस है, अगर आप प्रोसेस किसी को लगा पाए। दूसरी चीज़ ये एक और जो मेरा से नई चीज़ शुरू हुई है जो ये देखिए काफ़ी कि अब अक्सर ये भी हो गया कि जब मैलप्रैक्टिस या नेग्लिजेंस के सिलसिले होते हैं अस्पतालों में और लोगों को वहाँ पे डॉक्टर से गाइडेंस बाकी कुछ आगे नहीं चल रहा होता, तो वो उसके फेसबुक ग्रुप से फेसबुक पेजेस बना देते हैं, जिसके ऊपर फिर सब लोग मिलकर बातचीत कर लोगे, सब कर लोगे, वो भी आई थिंक काफ़ी नई प्रैक्टिस शुरू हुई है। तो उस हवाले से आपने क्या कहा, आपको लगता है कि डाइट्स एंड बेटर ऑल्टरनेटिव जिस किस्म की मीडिया में प्रोटीन दिया उसमें कुछ खामियां हैं या उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं? तो पहले सवाल है ये कि अस्पतालों में निज़ाम है कि नहीं, ये सवाल था आपका। हाँ, तो अस्पतालों में निज़ाम है, इनकी शक्ल मुख्तलिफ है हर एक जगह। जो एक्रेडिटेड जैसे JCIA है, जो अमेरिकन एजेंसी है जो अस्पतालों को रिकगनाइज करती है, एक पर्टिकुलर तरीका मांगती है कि आपके पास ये रिपोर्टिंग का तरीका होना चाहिए, इसकी एनालिसिस का ये तरीका होना चाहिए, और आप खुद से आपको इदारे को ये करने की ज़रूरत है ताकि गड़बड़ ना हो रही हो। इस तरह तब्बा भी एक्रेडिटेड है किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, उसका एक मुख्तलिफ तरीका है, तरीके मौजूद हैं। कंप्लेंट सिस्टम तकरीबन हर अस्पताल में मौजूद है, शिकायत दर्ज कराने का तरीका तकरीबन सारे अस्पतालों में, तो वो आप हर जगह कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम जो बड़े अस्पताल हैं उनमें ज़्यादातर में मौजूद है, वो फंक्शन करता है, वो फंक्शन करता है। आपको परस्यू ज़रूर करना पड़ता है, बेड के बाद ज़रूर करनी पड़ती है, आपको परस्यू करना पड़ेगा, लेकिन फंक्शन करता है। आखान का मुझे पता है क्योंकि मैं वहाँ ट्रेन हुई हूँ कि वहाँ का निज़ाम काम करता है। आया कि वो आपको उस हद तक कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन निज़ाम किसी हद तक काम ज़रूर करता है। लियाकत नेशनल में डॉक्टर बुशरा ट्रेन हुई हैं,
मेजॉरिटी हॉस्पिटल बड़े हो छोटे हो, अगर कोई इवेंट होता है ना अंदर, तो उस चीज़ की एक अकाउंटेबिलिटी होती है, कुछ की एक बहुत अच्छा फॉर्मल प्रोसेस बनाया हुआ है। लाइक आखा में मुझे पता है, पटेल में है, रियासत में भी ये खत में है, यू नो। प्रॉब्लम उसकी एक कड़ी पूरी नहीं की जाती, और वो है कि जो एक स्टेक होल्डर है यानी मरीज, उसका ख़ानदान या अवाम, इस मरहले पे जब बात आती है तो इदारे हिचकिचाते हैं और एक कदम पीछे लेते हैं। और ये कदम पीछे लेने की वजह वो है कि माशरा का जो रिस्पांस मिलता है, एक बड़ा इदारा, दारुल से जहाँ निशवा का ये हुआ था, एक इदारा है जिससे पता नहीं कितने हज़ारों मरीज ठीक होके गए, उस इदारे को बंद होना पड़ा एक सानहे की वजह से। तो इदारे फिर डर जाते हैं कि क्या इनको बताएं, कैसे बताएं, ज़रा मामला ठंडा होने दो फिर बैठ के बताएं। तो सिस्टम्स हर जगह है, कुछ फॉर्मल कुछ इनफॉर्मल तरीके में। आप छोटे हॉस्पिटल में भी कुछ हो जाएगा ना, एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों हुआ, क्या हुआ, वो आपस के साइकिल में हो जाता है और बाहर वाले शख्स को खबर नहीं होती, वो खड्डा बचाने के चक्कर में मामला नहीं आगे बढ़ता। हाँ बिल्कुल, जो अहम बात है ये कि बहुत दफ़ा इस सब का नतीजा निज़ाम में तब्दीली वो सब जगह पे नहीं आ पाती, जिसके लिए मॉनिटरिंग बॉडीज़ को काम करना चाहिए, जो एक फ्लॉ है और जिस पर आई थिंक हमारे मॉनिटरिंग में काम करने की जरूरत है। जो पब्लिक तक बात पहुँचाने वाली चीज़ें वो मतलब प्रोसीजर्स में कवर नहीं होती, वो उसका एक कुछ जगहों पे है कि वो वापस जो कंप्लेनेंट है उसको बुलाकर उसको जवाब भी मिलता है, रिटर्न भी जवाब भी मिलता है, कुछ जगह पे ऐसा बिल्कुल निज़ाम मौजूद नहीं है। लेकिन जो दूसरा अहम बात है वो ये कि जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा, बेहतरी में आएगी, वो सब जगह नहीं मौजूद है, जिसको इम्प्लीमेंट करवाने की शायद ज़रूरत है हमारे मार्केट में। जो दूसरा सवाल था दूसरे सवाल का जवाब दे तो फिर मैं बात करती हूँ। आप कुछ इसी में ऐड करना चाहते हैं? जो जी बिल्कुल करीब करीब जब आपको पेशेंट के लैबोरेटरी को एजुकेट करना, ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है। उस वक्त इतने हाइपर एक्साइटेड होते हैं क्या उनको सच बात भी नहीं बता सकते। अच्छा एक बात ये है तो उसमें बुनियादी बात क्या है, बैक पर अगर आप सोचते हैं तो जो हमारी पब्लिक है ना वो एजुकेट होना भी नहीं चाहती। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। क्या लाख कोशिश कर रहे हैं, आप लाख कोशिश कर, अरे यार डॉक्टर साहब हमें सब पता है, हमें ना पता। अच्छा मैं इसमें ज़रा थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। मैं इस बात पर यकीन नहीं रखती हूँ जो आपने स्टेटमेंट किया। मेरे नज़दीक ये एतबार की कमी है, इसको ये एतबार की कमी है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि किसी डॉक्टर को मतलब मैंने खुद ये देखा है कि किसी हॉस्पिटल से निकाल देते हैं, मतलब किसी हॉस्पिटल से निकाल दिया गया उसे, और वो डॉक्टर को कहेगा कि भाई कौन से रीज़न तो नहीं बताएगा भाई मुझे क्यों निकाला, वो तो ये कहेगा ये तो फलाना ढूंढा, उसको निकाल दिया और किसी और हॉस्पिटल में चले गए आप नौकरी करिए उसमें। अब एंड पॉइंट पे तो मरीज है ना कुर्बानी का बकरा ज़्यादा बनेगा, उसे क्या पता कि भाई ये कॉम्पिटेंट है डॉक्टर, ये कहाँ से निकाला गया कॉम्पिटेंट है नहीं है, वो पे मतलब ऐसा जितना बोलता था कि आपकी इलाज जिसके पास कराने जा रहा है उसकी हिस्ट्री बताओ, ये है वो इस्लामी दिन का होना, वरना वो कुर्बानी का बकरा बनेगा जब तो जो प्रैक्टिस है ना उसको रिपोर्टिंग मैकेनिज्म उसका होना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, पीएमडीसी के थ्रू हो, किसी बॉडी के थ्रू हो, बिल्कुल होनी चाहिए। कुछ वाकयात हैं ऐसे जो कि रिसेंट पास्ट में भी हुए जहाँ पे सस्पेंड किया गया डॉक्टर को बिकॉज दे वाज अ ग्रॉस मैलप्रैक्टिस इन्वॉल्व्ड, लेकिन ऐसा होता है, लेकिन उस लेवल में नहीं होते जिस लेवल पे होना चाहिए। जो दूसरा सवाल आपका है, देखिए अगर तो सोशल मीडिया के डिस्कशन का मकसद सिर्फ वेंट आउट करना ना हो, सिर्फ गुस्सा निकालना ना हो, तो वो बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। तो कभी कभी मैंने एक आध दफ़ा सोशल मीडिया के डिस्कशन में एक आध कमेंट डालने की कोशिश की, मुझे उसका फ़ायदा नहीं नज़र आया। जो डॉक्टर ने उसने कहा आपने सही बात करी, नॉन डॉक्टर ने कहा बकवास बात है, कोई फ़ायदा नहीं बात। सोशल मीडिया पे एजुकेटेड डिस्कशन या एक ऐसी साइट जहाँ पे वो डालें और उस पर रिस्पॉन्स मिल सके हो सकती है, लेकिन आमतौर पे सोशल मीडिया के जरिए
गुस्सा निकालने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। And just to add to what you say, problem सोशल मीडिया हो, अखबार हो, कहानी मुकम्मल नहीं होती है। यहाँ ये इसको जो है टीका गलत लगी, डॉक्टर ने मार दिया, भाई हुआ क्या था, सिचुएशन क्या थी, किस चीज़ में कौन सी गलती हुई है, लापरवाही हुई है, किसी ने कत्ल करने की कोशिश की है, मतलब सब हो सकता है ना। वो कहानी जो है तो चाहे सोशल मीडिया पे हो और उस पर किसी की ज़िंदगी, अगर आप उसकी ज़िंदगी को बहुत बड़े दाव पे लगाते हैं और उसके नाम के ऐसा डिस्ग्रेस उसको कर देते कि उस आदमी को 4 लोगों के आगे जाने का नहीं होता है, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कहानी जो ये अखबारों में आती है या सोशल मीडिया पे आती है, उसका एक कट पीस देते हैं और उसी को फिर बोला जाता है। तो इसमें गुजारिश ये होती है कि पूरी कहानी पता करें फिर कोई जजमेंट दे। अरे इसकी बेहतरीन मिसाल जो है कि वो HIV वाला डॉक्टर जो लाड़काना का था वो है, जिसमें खबर आई थी कि डॉक्टर ने बच्चों को इंतकामन इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से HIV बच्चों में फैल गया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये मतलब ये बहुतान के बराबर है। आपने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसकी कोई साइंटिफिक ग्राउंड, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं था। जब बाद में वो इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो उस डॉक्टर को खुद अपने HIV स्टेटस का नहीं मालूम था और जब उसका खून किसी के खून को लग नहीं रहा तो डिजीज़ ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकती है। तो इसमें प्रोसेस उस इलाके के कोई हज़ारों लोगों को और निकल आया HIV। इसका मतलब उस इलाके में HIV फैल रहा है। रीयूज सिरिंजेस वर द मेन रीज़न कि एक सिरिंज एक मरीज़ को, फिर वही सिरिंज दूसरे मरीज़ से इस्तेमाल हो गई, जिसकी वजह से फैला। एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी थी जिसको एड्रेस करने का तरीका ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप सिरिंज का रीयूज बंद करवाएं, आप उस पॉपुलेशन को स्क्रीन करें HIV के लिए। तो जब खबर बगैर तहकीक के जरिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का तकाजा है कि मैं खबर देने जा रहा हूँ तो उसके हर पहलू को देखूँ और फिर उसको खबर के तौर पे दूँ। हम कच्ची खबर को उठा के पहले शहसरुखी बना देते हैं और फिर उसके बारे में गुफ्तगू शुरू होती है और जब तक कि हकीकत वाज़ेह होती है उस वक्त तक मीडिया में वो खबर मर चुकी है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त हम जो कर रहे हैं हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। हम एतबार को उस लेवल पर नीचे ले आए हैं कि जहाँ सही डॉक्टर भी काम करने से पहले कहता है कि भाई मीडिया के जानने वाले तो नहीं हो, देखो भाई मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ ताकि कल को तुम मेरे पास पलट के ये ना हो कि तुमने बताया नहीं। तो एतबार को हम खुद से कम कर रहे हैं, ये ना करें, खबर नशर करें, गलत काम हुआ ज़रूर खबर नशर करें, लेकिन उन सारे स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन शामिल हो उस खबर में। इसी बात का इजाफा करेंगे कि जो मीडिया है दूसरे के आरोप में लोगों का आम रवैया जो रिश्वा का भी हुआ था उसमें ये भी आया कि डॉक्टर जो है बहुत लापरवाह होते हैं। अब इनमें से एक दो को सज़ा मिलेगी ना तभी वो ज़्यादा तवज्जो देंगे पेशेंट को और ये करेंगे, बजाय इसके कि वो है कि इससे गलती। कुछ ने ये भी कहा कि भाई कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, वो नर्स का वो था कि प्रोसीजर पूरा नहीं किया उसने, लेकिन प्रोसीजर को कोई नहीं समझ रहा था। बस ये था कि मिलेगी इनको सज़ा तभी। और इसमें जो आपने दिखाया था शुरू में उसमें जज का भी दिखाया था, ये जज ने जो है उसको सज़ा का प्रूव करा कि